Now we are discussing the pathogenesis of osteoporosis. You know there are the two cells involved in the remodeling of bone. Osteoblast and osteoclast. You are very hurry because you are very confident in it. Osteoblast is for bone deposition. B for building. It is involved in the bone building. And osteoclast resorption. C for cutting. इस तरह जाते हैं, कभी भूलेंगे नहीं. ये अच्छा है. ठीक है. तो osteoblast cut the bone, osteoblast build the bone. ठीक है. अब इनको थोड़ा समझें. Osteoclastic activity is under the control of osteoblast. These are the osteoblasts which control the osteoblast. ठीक है. Osteoblast क्या करते हैं? ये osteoblast है ना. For example, this is osteoblast and this is osteoclast. Osteoblast जब भी bone को resorb करना होता है ना, तो osteoblast sends signal to the osteoclast, initiate your activity. We are looking at you, initiate your activity. We will not let you to cut the bone more. Until unless we are here, we will not let you to cut that. But what is your function? We are allowing you do that. So this is controlled by releasing of the special proteins known as Rankel. Very good. Osteoblast release the chemical known as Rankel. So they have released the chemical. Now there must be the receptors of Rankel present on the osteoclast. These Rankel go and bind on the receptors. These are the receptors. Rankel bind here. Rankel bind here. And they activate the osteoclast. Osteoclast initiates its activity and cut the bone. But this is directly supervised by the osteoblast. जितना बोन को काटना है ऑस्टियोब्लास्ट को पता चल गया कि अब रोक दो बस. अब कैसे रोकेगा वो? It will release another chemical known as osteoprotegrin. Osteoprotegrin. नहीं, ये आर्मी की तरह है ना, काम तो करने दे रहे हैं, लेकिन अगर ज्यादा काम कर दिया तो किसी और को भेज देगा. ऑस्टियोप्रोटेग्रिन को ये रिलीज करेगा और ऑस्टियोक्लास्ट के पास ये जाएगा. हाँ भाई, इतना क्यों काट रहे हो? ये जो रैंकल रिसेप्टर्स है इनको अंदर ले लो, अपने डाउन रेगुलेट हो जाएंगे. रैंकल बेचारा आएगा, उसको रिसेप्टर्स नहीं मिलेंगे, काम खत्म ऑस्टियोक्लास्ट का. सो ऑस्टियोब्लास्ट विल नाउ इनिशिएट देयर एक्टिविटी. सो देयर इज अ बैलेंस in between the osteoblastic activity and osteoclastic activity. ठीक है. लेकिन up to age of 30 year somewhat osteoblastic activity is more. up to age of 30 year. ठीक है. जब बच्चा पैदा होता है तो somewhat osteoblastic activity is more. तो बोन ज्यादा बनना शुरू हो जाता है. up to age of 30, जिससे वो 30 ईयर तक आ गया, जितना बोन मास अचीव करना था उसने अचीव कर दिया. अब यहाँ से 30 इयर्स के बाद ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी समवार मोर एज कंपेयर्ड टू ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी. इसीलिए कहते हैं कि ओल्ड एज में बोन आके कमजोर हो जाते हैं. दिस इज द रीजन. अब समझना इस बात को, अगर 30 इयर्स तक बोन ने अपना मास सही तरीके से अचीव नहीं किया, आर दिस पेशेंट इज रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस और नॉट? यस. Failure of to achieve the normal bone mass. ये definition है दूसरी. Failure to achieve the normal bone mass or greater loss of the bone mass. पहले तो उसने bone mass से इतना बनाया ही नहीं, इसलिए वो जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ चला जाएगा. ठीक है. अगर पूरा बन गया है लेकिन अभी ज्यादा लॉस हो रहा है, एक्सीलरेटेड फेज, तब भी ऑस्टियोपोरोसिस होगी. Failure to gain the normal bone mass or increased in the loss of bone mass. Osteoporosis इसकी वजह से होती है. समझ में आ रही बात? ठीक है. What are the risk factors for the osteoporosis? अभी पैथोजेनेसिस समझ में आ गई ना? Good. Okay. What are the risk factors for the old age? ठीक है. Okay. Old age. ओल्ड एज क्यों? मैंने समझाया अभी आपको. ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी एज कंपेयर्ड टू ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी विल बी समव्हाट इंक्रीज्ड. ओके. और डाइटरी इनसफिशिएंसी इन द सेंस के बोन मास सही तरह से नहीं बन पाया.
वो क्यों नहीं बताते? फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। एज बताया आपने, जेंडर बताएं, जेंडर बताएं, फीमेल से ज़्यादा होता है। और वो आप बताएं क्रॉनिक डिजीजेस, जेंडर के बाद स्मोकिंग में ज़्यादा होती है ना, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी निकोटीन बढ़ा देती है, ठीक है। अल्कोहलिज्म, ये आपने पढ़ा होगा कि लो बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि बोन मास है ही नहीं, तो ज़्यादा अगर उसका ऑस्टियोपोरोसिस होगी तो जल्दी खराब हो जाएगा। कौन सा इन्फेक्शन होता है जो ऑस्टियोपोरोसिस करवा सकता है? HIV क्यों? क्योंकि लीन मास होता है ना, क्या कैसे करता है ना, बोन मास बन ही नहीं पाता। जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, ठीक है। और लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, खाया पिया सोया बस, बोन पे स्ट्रेंथ ही नहीं आई इतनी, इसीलिए अमीरों के बच्चों का फ्रैक्चर बार बार होता है। दिस इज द रीजन, खाया पिया होता है, जिंदगी अच्छी है, ईट स्लीप वेल, लाइफ स्टाइल सेडेंटरी, ठीक है। ड्रग्स पता है कौन सी हैं? अच्छा आप देखें, इनमें से कुछ मॉडिफाइबल रिस्पेक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्पेक्टर्स हैं। जेंडर नॉन मॉडिफाइबल, ओल्ड एज किसी की जेंडर आप तब्दील नहीं कर सकते। ओल्ड एज इज नॉन मॉडिफाइबल, फैमिली हिस्ट्री इज नॉन मॉडिफाइबल। हाँ, स्मोकिंग को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अल्कोहलिज्म को मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अल्कोहल कैसे करेगा? अल्कोहल कैसे करेगा पता है? माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिन होता है, मार देगा सेल्स। अल्कोहल के बहुत वो होते हैं, वेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज काजिंग दी सिरोसिस ऑफ लिवर, तो वहाँ पे विटामिन डी की 25 विटामिन डी वहाँ पे बनती है। तो बाय काजिंग दी क्रोनिक कंडीशंस और एक अक्यूट में ये आपका लैक्टिक एसिड एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की तरफ शिफ्ट कर देता है ना अल्कोहलिज्म। तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म एसिडिक इन्वायरमेंट में बोन आपका नहीं बनता। बोन इज ऑलवेज फाउंड इन अल्कलाइन मीडियम। बोन रिजॉर्प्शन से एसिडिक इन्वायरमेंट, हाँ ठीक है, एसिडिक इन्वायरमेंट में वो टूटता है। ओके, ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? तो बिस्फॉस्फोनेट्स अगर हाई डोज इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ वो भी हो सकता है, गुड वन। कॉर्टिकोइड है सर। हाँ, स्टीरॉइड्स। हाउ स्टीरॉइड्स causes the osteoporosis? सर वो रैंक एल सॉरी ऑस्टियोपोट्रीटमेंट सर कुछ इसके साथ करता है, कुछ करता था क्या? इनका कोई रिलेशन था क्या? कम कर देता, अभी वो आपस में नहीं बन पा रहे। इससे कम कर देता है। हाई डोज स्टीरॉइड्स, अगर कोई पूछा हाई डोज स्टीरॉइड्स पे आपके वो इनहिबिट हो जाते हैं, क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोगोनाडिज्म। हाई डोज स्टीरॉइड्स में कॉज हाइपोगोनाडिज्म। एक तो ये हो गया रीजन। दूसरा रीजन ये हो गया कि इट इनहांसेस द कैटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी इन द इंटेस्टाइन, इसलिए कैल्शियम वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अगर कैल्शियम इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब ना हो और उसकी एक्सक्रिएशन स्टीरॉइड की वजह से रीनल सिस्टम से ज़्यादा हो तो हाइपोकैल्सीमिया होगी, हाइपरकैल्सीमिया होगी, हाइपोकैल्सीमिया। नाउ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आर देयर और देयर इज हाइपोकैल्सीमिया, वी शुड रिलीज द पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन आएगा और बोन्स के ऊपर काम करेगा। भाई जो आपके पास कैल्शियम है हमें भी दे दो। इन दिस वे इट कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस। एक ये इट हाई डोज इट कॉजेस हाइपोगोनाडिज्म, वन रीजन। नंबर सेकंड, it decreases the calcium absorption from the intestine and it accelerates its excretion in urine, thereby activating the parathyroid glands, PTH is released, ठीक है। और तीसरा, it suppresses the osteoblastic activity। तीन, now someone is asking you how stress causes the osteoporosis, you must answer, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कैसे सरप्रेस होगी? ऑस्टियोप्रोटेग्रिन प्रोटीन्स को वो कम कर देता है। इतना डिटेल में ना जाए आप यू विल लेवल। ओके, व्हाट आर द अदर ड्रग्स? थायरोसिन, व्हाट आर अदर ड्रग्स? सर ये डायबिटिक्स, ग्लूटामाइन,
ओके दे काजेज दे आपको कैल्शियम एक डाइट होता है जो देते हैं थायराइड डाइट कैल्शियम इसीलिए someone is asking you a patient of the osteoporosis is a hypertensive which diuretic you will give ड्रग्स बताएं और ड्रग्स बताएं एंटी डायबिटिक्स कौन सी होती हैं ये बताएं आप मुझे ये बताएं आई विल बी इम्प्रेस्ड जो वेट लॉस करवाएंगे जो फ्लूइड रिटर्न करवाती हैं कौन सी ड्रग्स पायोगिल्टाजोन रोजिगिल्टाजोन पायोगिल्टाजोन और ड्रग्स बताएं एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स Phenytoin, okay, phenytoin less likely causes osteoporosis, but it causes the one skeletal condition, and that is called ये MCQ है. It causes osteomalacia. ठीक है? So anti-epileptic drugs. और बताएं. सर वैल्प्रोइड या फिर हो गई ना एंटी-epileptic drugs आ गई हैं सारी. अच्छा हुआ आपने फेनिटोइन पूछा फेनिटोइन का मैंने बता दिया मोस्ट लाइकली इट कॉजेज ऑस्टियोमलेशिया ये एमसीक्यू है याद रखना व्हिच अमंग द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेज द ऑस्टियोमलेशिया कार्बामेज़ेपाइन वेलपोरिक एसिड इथोसक्सिमाइड एंड फेनिटोइन इट्स फेनिटोइन ओके और टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स tamoxifen such as मार्टिनिप होता है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर से हाँ ये भी करा सकता है लेकिन मोस्टली जो आपके वो होते हैं ना पेशेंट्स सीए ब्रेस्ट के tamoxifen देते हैं ना so this may cause the tyrosine kinase inhibitors जो होते हैं ना they may cause actually the osteoporosis okay what are the medical conditions which causes the osteoporosis sir any malabsorption disorders celiac disease okay और liver disease sir pancreatitis chronic pancreatitis not pancreatitis CKD very good CKD की वजह से अगर बोन टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं मतलब CKD की वजह से बोन में प्रॉब्लम आ जाए उसे क्या कहते हैं सर ये सेकेंडरी है रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी वेरी गुड अगर लिवर की वजह से मसला हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं हेपाटिक ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी so there are the two dystrophies one is hepatic osteodystrophy and another one is the renal osteodystrophy chronic kidney disease osteitis fibrosis cystic fibrosis bony abnormalities bone के अपने मसले हो Paget's disease ठीक है और दूसरे मस्कुलर मार्फन सिंड्रोम EDS Ehlers-Danlos syndrome और osteogenesis imperfecta हाँ ये भी आ गया ठीक है और RA autoimmune disease SLE और क्या है और मोस्टली ऑटोइम्यून डिजीज तो तकरीबन आ जाती है EDS हो गया मार्फन सिंड्रोम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्रोनिक किडनी डिजीज लिवर डिजीज सर ये मल्टीपल मायलोमा वेरी गुड कैंसर प्रोस्टेट कैंसर कौन सी कैंसर होती है जो बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है मतलब ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ा देती है ऑस्टियोसार्कोमा नो ब्रेस्ट कैंसर ठीक है तो ये मेडिकल कंडीशंस हो गई ये आपके ड्रग्स हो गए ये रिस्क फैक्टर्स हो गए ठीक है